Hello and welcome, my dear students, to Imavate. My name is Sunando Devnath. Let us continue with the chapter Reflection of Light that we have already started. This is a very important chapter in class 9th physics. So in this lecture, I would be starting with a new topic, image formation in spherical mirrors. Alright, so we have two types of spherical mirrors. You know it, convex mirror and concave mirror, about which we have already discussed in the previous lectures. Make sure that you have watched all the previous lectures before proceeding with this one. And the links of all the previous lectures, in fact the link of that playlist which contains all the previous lectures, is given in the description box of this video. You can check that link and watch those previous lectures before attending this lecture. Alright, so to draw the ray, to draw the image, in the two spherical mirrors, we need to know four important rules. Okay, these four rules, if you know nicely and you know how to apply them at the correct time, and you can easily draw the image, the ray diagram for both of the mirrors. It's very simple. The only thing is that you need to know these four rules very nicely, and in fact we need to use only two of these four rules for drawing a particular ray diagram. So let's know all the four rules. Number one, the first rule says, or if you take your notebook, and you must be equipped with compass today. Let me tell you at the beginning itself, you must have a compass, you must have a pencil, a sharpened pencil of course, eraser, and of course a pen. And for the ray diagrams, of course, you would not use pen. For the diagrams, you would use pencil. Okay, so a compass must be used to draw the spherical mirrors, and I would be guiding you, I would be teaching you that particular thing in this video. How would you draw a convex mirror or a concave mirror using compass and a pencil? और कुछ भी अगर लिखना है below the figure, like characteristics of the image and all that, you would be writing with pen, but the diagram would be with pencil only. ठीक है? So I hope you're ready with your compass, pen and pencil. It's not just a watching video, you have to do it along with me. At times you may need to pause the video and then do it yourself on the pen and paper. Do it yourself with pencil and paper on the paper, and then again you can resume the video. So it's a different kind of video, not just a watch video. All right, the first rule says a ray passing through, listen carefully and write it down. This you can write with pen, but the diagram would with pencil only. A ray passing through or directed towards the center of curvature, of a spherical mirror. It can be either of the spherical mirrors, so I'm writing of a spherical mirror, is reflected back along its own path, is reflected back along its own path. Very easy, बहुत easy. You see what is being said. Now you need to take your compass, in which a pencil must be fitted, and a sharpened pencil of course. Now how do you draw a spherical mirror? Okay, using a compass. And now we won't be drawing with free hand. जैसे पहले मैंने ऐसे free hand में कई बार बताया था ना कि convex mirror भी बनाया था, तो free hand में ऐसे concave mirror बना दिया था free hand, या फिर concave mirror बनाया था तो free hand बनाया था. center of curvature भी हमने अंदाजी ड्रॉ किया था कि शायद ये center of curvature होगा. अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो मोटा मोटी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा. नाउ वी वोंट बी डूइंग इट विद एस्टिमेशन. अब मोटा मोटी से काम नहीं चलेगा. वी नीड टू एग्जैक्टली हैव द पॉइंट वेयर वुड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बी, एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी मेजर्ड. इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? कॉम्पस, एक इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, और एक रूलर भी चाहिए, एक स्केल चाहिए, सो दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंसेस ऑल्सो. अच्छा, नाउ सी, टेक योर कॉम्पस. अब कॉम्पस से तुम्हारा रूल्ड आंसर शीट होगा एग्जाम में. यू विल बी गेटिंग रूल्ड आंसर शीट्स, राइट, लाइक दिस. तो मान लो कि तुम्हारा ये रूल्ड आंसर शीट है. तुम्हें तो व्हाइट पेपर पे नहीं मिलेगा ना आंसर बोर्ड में लिखने के लिए. यू वुड गेट रूल्ड पेपर. तो ये बहुत अच्छी बात है कि यू ऑलरेडी have these lines drawn so that you don't need to worry about the principal axis. You can just choose any of these lines of your notebook
और ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तुम मान लो कि ये तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट है और तुम चलो इस लाइन को हम अपने प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, ठीक है, किसी भी लाइन को मान सकते हैं। मैं इस लाइन को मान रहा हूं क्योंकि ऊपर में काफी मुझे जगह मिलेगा, नीचे भी जगह मिलेगा, मोटा मोटी बीच में है। सो लेट अस ट्रीट दिस लाइन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ हाउ वी विल ड्रॉ द मिरर। अब अपने कॉम्पस को इस लाइन के ऊपर, जिस लाइन को हमने प्रिंसिपल एक्सिस माना है, उस लाइन के ऊपर प्लेस द नीडल। ओके, मोटा मोटी बीच में रखो सो दैट आवर फिगर get some space, or you can keep it little towards the right. Okay, तो कॉम्पस को मोटा मोटी थोड़ा राइट साइड, राइट ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट में रखो। तो ये जो पॉइंट मैंने रेड से मार्क किया, दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट वेर यू हैव प्लेस्ड द कॉम्पस नीडल। और कॉम्पस नीडल को भी तुम जहां पॉइंट कर रहे हो वो पॉइंट को मार्क कर लेना। ओके, मतलब वो पॉइंट जैसे तुम कॉम्पस को उठा लोगे, after drawing it, that point should be visible to you, क्योंकि that would be our center of curvature। तो इस पॉइंट जहां पे तुम कॉम्पस को रख रहे हो, उस पॉइंट को अच्छे से नोट देख लेना कि कहां रख रहे हो, so that when you even raise your compass you should be able to identify that point। alright, तो यहां पे हम कॉम्पस के नीडल को रखेंगे और कॉम्पस को कितना खोलेंगे। तो बिफोर putting the needle into the paper, you actually open the compass with radius of about 3 centimeters. It can not necessarily 3, it can be 4 centimeters, but I think 3 centimeter would be fine. So तुम यहाँ पर पहले तो अपने रूलर को लेना, सबसे पहला रूलर को लेना। यहाँ 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और कॉम्पस नीडल को, कॉम्पस को तुम कितना खोलना, यहाँ नीडल है, यहाँ तुम्हारा पेंसिल है, पेंसिल है, तो 3 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर पहले तुम कॉम्पस को ओपन कर लेना, उतना डिस्टेंस हो गया। स्केल को हटा देना। नाउ योर कॉम्पस हैज बीन ओपनड विथ, और इट इज एट एन एंगल और एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। यू नो व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल इट वुड बी अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। सो अब वो 3 सेंटीमीटर वाला ओपन किया हुआ कॉम्पस से तुम यहां पे नीडल को रखना एंड देन यू ड्रॉ अ कर्व। डोंट ड्रॉ द कंप्लीट सर्कल, लेकिन मैं यहां पे एक कंप्लीट सर्कल पहले बना ले रहा हूं। तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कॉम्पस वहां रखकर तुम जब सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तुम्हें कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। एंड नाउ यू जस्ट डोंट ड्रॉ द एंटायर सर्कल। व्हाट यू डू, मैं तो बस समझाने के लिए पूरा सर्कल बना दिया। तो तुम्हें सिर्फ ये एक आर्क शो करना है। आई एम इरेजिंग ऑफ राइट नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल बिकॉज दिस यू एक्चुअली डोंट हैव टू ड्रॉ। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा आर्क ही ड्रॉ करना है ताकि ये हमारा एक मिरर बन गया, स्फेरिकल सरफेस मुझे मिला। तो ओनली यू नीड टू ड्रॉ दिस आर्क विद अ पेंसिल। वहां पे कॉम्पस को रख के बस पेंसिल से ये आर्क बना लेना, पूरा सर्कल मत बनाना। नाउ दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर्स, क्योंकि तुमने 3 सेंटीमीटर्स का ही कॉम्पस को खोला था। अगर तुम 4 सेंटीमीटर्स खोलते तो ये डिस्टेंस तुम्हें 4 सेंटीमीटर मिलता। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, 3 लो, 4 लो, 5 लो। हालांकि 5 लोगे तो काफी बड़ा डायग्राम बनेगा। वी आर ड्रॉइंग विद अ मॉडरेट साइज, तो 3 ठीक है। 2 सेंटीमीटर लोगे तो काफी छोटा बन जाएगा, तो मुझे लगता है 3 इज फाइन। ऑलराइट, सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉम्पस को उठा लेना, but you would be able to identify at which point you had placed the needle of the compass. So that is center of curvature. It is the center of that sphere of which this mirror is the part, and this point is pole. देखो pole तुम्हें identify करने में difficulty नहीं हुई because you have chosen the line of your notebook, of your answer script itself as the principal axis. So you actually know that this line, this particular line is the principal axis. So pole तुम्हारे लिए identify करना बहुत easy हो गया। अगर तुम ये कॉम्पस नीडल किसी व्हाइट प्लेस पे रखते, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ऑन दिस लाइन, अगर तुम व्हाइट पे रखते तो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें पाने में थोड़ा सा दिक्कत होता। बट द स्ट्रेट लाइन इज ऑलरेडी, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर नोटबुक, एंड दैट इज व्हाई इट इज इजी फॉर यू टू get the principal axis and very easy for you to get the pole. So you have now understood what is center of curvature, what is pole. अब तुम क्या करो, हम सबसे पहले कॉनकेव के लिए कर रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स का भी मैं बताऊंगा, वेरी सिमिलर टू इट। इस साइड को शेड कर दो बिकॉज वी आर ड्रॉइंग कॉनकेव मिरर राइट नाउ। हो गया, आवर मिरर इज डन। पेंसिल से इस लाइन को थोड़ा हाईलाइट कर दो, मतलब इसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर दो। दिस लाइन इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर आंसर स्क्रिप्ट, उसके ऊपर पेंसिल से इसको हाईलाइट कर दो। बहुत
डार्क मत करना, विथ वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल, जस्ट वन स्ट्रोक, गंदा नहीं होना चाहिए फिगर। तो देखो हमने क्या किया, ये जो रेड कलर से जो भी मैं कर रहा हूं, कंसिडर इट टू बी योर पेंसिल वर्क। जो भी मैं रेड से कर रहा हूं वो तुम्हारा पेंसिल वर्क है, तुमने पेंसिल से ये सारे काम किया, ठीक है। तो तुमने अभी तक क्या किया है माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ड्रॉन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू हैव मार्क्ड द पोल, and this distance is the radius of curvature, all right, and this is very much measured. You know that the radius of curvature is 3 centimeters because you have taken it to be 3 centimeters. So exactly at 1.5 centimeters, 3 का आधा 1.5, मतलब exactly in the place 1.5 centimeters there should be focus. वो भी अंदाजी से मत मार्क करो focus, फिर से स्केल लो, तुम्हारे पास स्केल है, स्केल है ना, स्केल में देखना 0, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ 1.5 सेंटीमीटर। तो तुम स्केल से मेजर करके शार्प एंड पेंसिल से 1.5 सेंटीमीटर जो तुम्हें मिलेगा वहां पर एक डॉट दो एंड मार्क इट एज फोकस। दिस फोकस यू हैव नॉट मार्क्ड इट विथ एन एस्टिमेशन, मोटा मोटी यहां पे होगा, वैसा तुमने नहीं किया। तुमने एग्जैक्टली पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, फिर वो भी स्केल से मेजर करके, एंड फिर तुमने स्केल से मेजर करके एग्जैक्टली एट 1.5 सेंटीमीटर्स यू हैव मार्क्ड द फोकस। सो एवरीथिंग इज वेरी मेजर्ड एंड दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ एन एग्जाम। नाउ इट सेज अ रे पासिंग थ्रू, अब ये हो गया, ये जो हमने अभी तक किया दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द रे डायग्राम्स दैट वी विल बी ड्रॉइंग फॉर कॉनकेव मिरर। आगे जितने भी हम कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स करने वाले हैं उन सभी में ये जो अभी तक हमने किया सब में ये कॉमन है, क्योंकि तुम्हें कॉनकेव मिरर बनाना ही है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, पोल भी मार्क करना है, फोकस भी मार्क करना है। तो बिल्कुल अभी तक जो हमने किया ये तुमको सारे आगे जितने भी डायग्राम्स है उसमें भी करना है। आई होप मैंने इसलिए इतना स्लो और इतना एक्सप्लेनेटरी बताया सो दैट यू कैन डू इट विथ मी। अगर नहीं किया हो तो पॉज करके इसको करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड इन ऑल ऑफ द रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स आई मीन कॉनकेव मिरर। अब हम रूल नंबर 1 में आते हैं। वो कहता है कि अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स जो है ये स्पेशली कॉन्वेक्स के लिए है। तो अभी हम सिर्फ कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पासिंग थ्रू पढ़ रहे हैं। Passing through is only for this mirror, concave mirror. So a ray passing through center of curvature is reflected back along its own path. Wow, very good. तो क्या कहता है कि कोई भी रे है, इंसिडेंट रे है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब एक मैंने इंसिडेंट रे लिया, देखो वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दिस पॉइंट सी से पास कर रहा है, और सी से पास करते हुए वो मिरर को हिट किया, है ना। This incident ray is not parallel to principal axis, but it is passing through center of curvature and it has hit the mirror. तो after reflection क्या वो ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा ना, क्या वो ऐसे जाएगा ना, क्या वो parallel to principal axis बन जाएगा ना, क्या वो ऐसे जाएगा ना, कहा जाएगा इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ, जिस रास्ते से आया है वो उसी रास्ते से रिटर्न करेगा, द सेम पाथ। इसलिए देखो मैं रिटर्न पाथ भी उसी लाइन में ड्रॉ कर दिया, तो कितना इजी है ये। तो अ लाइन और अ रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर is reflected back along its own path, so you don't have to draw any other line to show the reflected ray. This particular line itself is the reflected ray, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से रिटर्न कर जाएगा। यह गया फर्स्ट रूल, isn't it so simple? बना लो इसको फटाफट, बना लो। If you have not drawn it, pause the video and draw it. Now I'm going to clear this off and I will be moving to the next rule. You have to remember the rule. C से आया तो C से ही पास करेगा। Now इसी में मैं मॉडिफाई करता हूं और सेकेंड रूल में मैं जाता हूं। Whatever rules we are studying right now are all for the concave mirror. Convex में भी मैं बताऊंगा, convex का भी मैं स्पेशली बताऊंगा, बिल्कुल सिमिलर है। तो कॉनकेव की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। एंड नाउ द सेकेंड रूल सेज, व्हाट डज इट से? सेकेंड रूल यहां पे हम लिखते हैं, सेकेंड रूल सेज, राइट इट, सी व्हाट डज इट से। फिर मैं इन दोनों रूल्स को फिर मैं कॉन्वेक्स के लिए भी अभी बताऊंगा।
See, a ray parallel to principal axis, in fact we have done this, again we are doing this one. A ray parallel to principal axis after reflection from a spherical mirror either passes or appears to be coming from focus. तो फोकस से वो पास करता है, आइदर एक्चुअली पासेस, अगर कॉनकेव मिरर है तो इट एक्चुअली पासेस थ्रू द फोकस, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. तो सिंस कॉन्वेक्स का हम थोड़ी देर बात करेंगे, अभी हम सिर्फ कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो लेट अस रीड दिस point like this. A ray parallel to principal axis after reflection from concave mirror passes from the focus, passes through the focus. इसी फिगर में मैं इसको समझा देता हूं. तो अभी हम कौन सा रे बनाने वाले हैं? Do I need to erase this off to make it clear? अब इस बार जो हमारा रे आने वाला है, तुम एक दूसरा डायग्राम बनाना, मैं जो इसी में इरेज करके मॉडिफाई कर रहा हूं वो काम तुम मत करना. यू ड्रॉ अ सेकेंड डायग्राम फॉर इट. फिर से इस तरह का एक मिरर बनाओ, वीडियो को पॉज करो एंड ड्रॉ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कॉनकेव मिरर वंस अगेन. अब सेकेंड रूल के लिए सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करो. ऑलराइट, नाउ व्हाट डज इट से? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी रे आया वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, मतलब this ray, this is coming parallel to principal axis. Yes, of course it is. तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया. देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा? बोल रहा है फोकस से. तो इसका रिफ्लेक्टेड पाथ जो है, इट वुड नॉट बी द सेम लाइन दिस टाइम. रिफ्लेक्टेड पाथ होगा और वो फोकस से पास करेगा, किसी और पॉइंट से नहीं, फोकस से पास करेगा. ये जितने भी कॉनकेव मिरर्स हैं उसमें ऐसा ही होता है. So this is a universal rule that any line coming parallel to principal axis after reflection from a concave mirror would pass from focus only. कोई अगर दूसरा रे भी है जो नीचे से भी है लेकिन पैरेलल होके पास कर रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसका भी यही होने वाला है. This line is also parallel to principal axis. After reflection, it would pass through focus only. देखो, don't forget the arrows. आने का arrows and जाने का arrows तुम्हें arrow heads बनाना ही है. This is the second one. तो ये जो फिगर हमने बनाया ये सेकंड वाले के लिए है. You would not modify it in the first figure itself. मैंने बोला फर्स्ट फिगर को ऐसे ही रखना, सेकंड वाला फिर से बनाना. This is the second figure. Second rule का फिगर. Two rules we have learned and one more rule is there. Three rules. In fact, four rules are there. The fourth rule is very insignificant and we would not be using that. So basically only three rules we need to study. And उसमें से भी any two we need to apply. So the third one I would be teaching you. In fact, fourth also I would be teaching you, but that is very insignificant. We don't use it anywhere. The third rule says, let me just create some space. I won't erase the things that I have written, but I need some space. थोड़ा सा मुझे space बढ़ाने का ये कर दो. एक मिनट. All right. Third. So we have done two rules and two figures. I hope you have done it. If not drawn, pause the video. Draw it. Third says a ray passing through the focus. A ray passing through the focus. उसका क्या होगा? Or converging at focus, उसका क्या होगा? After reflection from a spherical mirror,
becomes parallel to principal axis. Becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस. तो देखो मैं फिर से नया फिगर नहीं बना रहा हूं, इसी फिगर को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं. आई होप यू हैव ड्रॉन दिस फिगर. You will not modify in the same figure. You will again draw the same kind of concave mirror and you will draw it again. But I am doing it in the same figure. तो मैं इसको मिटा रहा हूं इस बार. इस बार क्या बोल रहा है? पहले तो मैं मिटा दूं इसको. Okay. Just a second. Give me some time to erase this. And this is also a very important rule. ये बोल रहा है मेरा इसमें तो C इरेज हो गया. ओके, लेट मी हैव द C. दिस इज C एंड दिस इज F. ऑलराइट, C इरेज नहीं होना चाहिए क्योंकि C अगर इरेज हो गया तो फिर हमारा फिगर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा. सो दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज F. ऑलराइट, नाउ व्हाट डज इट से? ये फिर से तुम लोग बना लोगे जैसे मैंने बोला है. सो ड्रॉ इट अगेन. And this time it says a ray which is passing through focus. कोई रे आया, फोकस से पास किया. अगर इस पहली बार वाला क्या था, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था, ऐसा कुछ था. तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था तो वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से रिटर्न कर रहा है. लेकिन इस बार ये रूल वो नहीं है. ये रूल कह रहा है अगर कोई रे जो फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो यू सी द रिफ्लेक्टेड रे वुड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल. इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो. नीचे से भी आया लेकिन फोकस से अगर पास करते हुए आया और मिरर को हिट किया इस तरह से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा. ऑलराइट, लाइक दिस. इजी, वेरी सिंपल. कोई रे फोकस से आया तो बन जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा. इनफैक्ट द सेकंड जो है और थर्ड जो है वो एक दूसरे का उल्टा है. सेकंड रूल कहता है कि कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और जस्ट उसी का कन्वर्स है कि कोई रे अगर फोकस से पास करता हुआ आया तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा. कितना सिंपल रूल है, कोई हार्ड कुछ है ही नहीं इसमें. These three rules are required to draw all of the ray diagrams. And now the fourth rule, which is not used, basically we don't actually put to use, तो इसलिए मैं इसको insignificant बोल रहा हूं, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं. A ray which is incident on pole, a ray incident on pole उसका क्या होगा? The reflected ray is at an angle of reflection equal to the angle of incidence with principal axis as normal. With principal axis as normal. तो ये रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल? तो let me first clear off this thing. This in the same figure I am again modifying it. You need to again draw this, of course. You don't modify it in the same figure. तुम फोर्थ एक फिगर बनाना और उसमें करना. ऑलराइट, तो तुमने बना लिया ये सारी चीजें. फिर से अब बोल रहा है कि कोई रे अगर, फोर्थ रूल कहता है कोई रे अगर पोल पर आकर इंसिडेंट हुआ, अ रे विच इज इंसिडेंट ऑन पोल, इस तरह से, इसका क्या होगा? व्हाट वुड बी द रिफ्लेक्टेड पाथ? वो बोल रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मान ले, तो लिखा हुआ है देखो, इट सेज, लास्ट लाइन क्या हुआ है? विद प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल. यही हमने सेंटेंस लिखा, प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल. तो प्रिंसिपल एक्सिस को ट्रीट करेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस,
हो जाएगा. So this same angle is formed as angle of reflection. तो रिफ्लेक्टेड रे भी रैंडमली कुछ कहीं मूव नहीं करेगा. इट वुड ऑल्सो मूव विद दैट पाथ कि वो सेम एंगल ही बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. तो यहाँ जो एंगल आर बनेगा दैट शुड बी द सेम एंगल एज आई. अगर सेम नहीं बनेगा दैट मीन्स आवर फिगर इज रॉन्ग. तो हमें आई मेजर कर लेना है प्रोट्रैक्टर से कितना एंगल है, और उतना सेम टू सेम एंगल ही हमें रिफ्लेक्टेड रे का बनाना है विद द प्रिंसिपल एक्सिस. तो देखो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको हम यूज नहीं करेंगे इस रूल को ज्यादा, क्योंकि इसमें हमें प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी. बिकॉज वी नीड टू मेजर दिस एंगल. आई कितना हुआ, फिर से प्रोट्रैक्टर से मेजर करके हमें उतना ही एंगल आर बनाना है. सो वी नीड एन एक्स्ट्रा इक्विपमेंट प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल्स. और हमें जितने भी रे डायग्राम्स है उसमें उसके लिए एनी टू ऑफ द रूल्स वी नीड टू फॉलो. हमने जो 4 रूल्स अभी पढ़ा 1 2 3 4, इन 4 में से एनी 2. तो व्हाई वुड यू गो फॉर द 4th रूल व्हेन यू दिस इज लिटिल cumbersome, because you need a protractor also in addition to compass and other things. And जो first 3 rules है you don't need a protractor. इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 3rd रूल को बस हम जानेंगे क्या है, we won't be using it in our ray diagram. यूज किसको करेंगे, 1st रूल, 2nd रूल या 3rd रूल, इनमें से कोई भी 2 को. तो एक बार फिर से क्विक रिविजन. 1st रूल कहता है एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिट्रेस्ड बैक, रिफ्लेक्टेड बैक along the same path. Second रूल कहता है any ray coming parallel to principal axis after reflection passes through focus. Third रूल कहता है any ray passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis. कितना easy. This is all about concave mirror. Now convex mirror. Convex में क्या है, ये जो रूल्स हमने लिखा ये एक्चुअली हमने दोनों के लिए लिखा है. अब मैं रूल्स को नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ फिगर को मिटाऊंगा, बिकॉज वी वुड बी ड्रॉइंग द फिगर फॉर कॉन्वेक्स राइट नाउ. तो मैंने देखो मिटा दिया. एंड नाउ जो हमने फिगर बनाया था दोज ऑल फिगर्स ऑफ वेयर फॉर कॉनकेव मिरर. मैं रूल्स वही रहेगा, मैं देखो सेम रूल्स ही से एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्वेक्स के लिए भी. अब नीचे तुम लोग बनाओ द नेक्स्ट फिगर फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ऑलराइट, कनकेव का तुमने 4 फिगर्स ऑलरेडी बना लिया है, 4 रूल्स. अब हम फिर अब स्टार्ट करें कॉन्वेक्स के लिए. हाउ वुड यू ड्रॉ इट दिस टाइम? यू वुड बी कीपिंग योर नीडल at almost at the same point, मतलब towards the right of the paper, no doubt. तो यहां पे तुमने कॉम्पस को रखा. रेडियस भी तुम वही खोलो, 3 सेंटीमीटर से खोलो. बट दिस टाइम आर्क को इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट ऑन दिस साइड यू वुड ड्रॉ द आर्क ऑन दिस साइड. दैट्स द डिफरेंस. तुम पहले आर्क इधर बनाया था ना, इस साइड. अब इस साइड में आर्क बनाना, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं. सो I would actually draw the full circle and then erase off because I don't have that feature to draw an arc only. तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया. ओके, इनफैक्ट तुम्हें तो परफेक्टली मिलेगा, मुझे भी. यहाँ तो मैं ऐप से कर रहा हूँ, मुझे कंपास मेरे पास है नहीं, तो मुझे मोटा मोटी एक मैंने बनाना पड़ रहा है. बट व्हेन यू वुड बी ड्राइंग विद अ कॉम्पास यू एक्चुअली नो दैट यस दिस पॉइंट इज द सेंटर, एंड तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक तुम्हें मिलेगा आर्क. तो मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ द रिमेनिंग पार्ट. इनफैक्ट यू वुड नॉट बी ड्रॉइंग दिस एट ऑल, यू वुड बी ओनली ड्रॉइंग दिस आर्क. ठीक है, तो तुमने ये आर्क बना लिया. एंड यू वुड बी नाउ शेडिंग दिस साइड बिकॉज यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर राइट नाउ. ये कॉन्वेक्स हो गया. यू हैव ऑलरेडी मार्क सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस पॉइंट पर तुमने कॉम्पस को रखा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. पोल भी इजीली तुमको मिल गया. And this line which you have already taken from the line printed in your notebook, this particular line is the principal axis, no doubt. This distance is 3 centimeters because you have opened the compass at a distance of 3 centimeters. So you already know that radius of curvature is 3 centimeters. Now with your compass you would mark focus which is at 1.5 centimeters from the pole. तो इसको भी अंदाजे मार्क मत करना. मैंने तो यहाँ अंदाजे किया हूं क्योंकि मेरे पास डिजिटल स्क्रीन में आई डोंट हैव स्केल टू मेजर एग्जैक्टली 1.5. बट तुम्हारे पास कॉम्पस है, रूलर है, तुम्हारा सब चीज परफेक्ट मेजरमेंट से होगा. ठीक है, तो स्केल रखते हुए यहाँ पे 1.5 डिस्टेंस पर फोकस मार्क कर लेना.
नाउ कमिंग टू द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल सेज अ रे, इस बार हम पासिंग थ्रू को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पासिंग थ्रू जो था वो कॉन्केव के लिए था. इस बार हम ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स को पढ़ेंगे. अ रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर is reflected back along its own path. A ray directed towards the center of curvature. तो एक रे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब इट इज समवेयर लाइक दिस. यू कंसिडर दिस रे, दिस रे, दिस रे हैज कम एंड हिट एट दिस पॉइंट ऑफ द मिरर. ओके, तो इसको अगर हम फॉरवर्ड ट्रेस करें विथ आवर रूलर रखते हुए, तो ये कहां पे पॉइंट जा रहा है, किस पॉइंट पे मीट करेगा. अगर ये ऑब्वियसली ये एक्चुअली इधर नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव शोन इट विद डॉटेड लाइंस. बट इफ वी प्रोड्यूस इट फर्दर यूजिंग डॉटेड लाइंस, इमेजिनरी लाइन है ये, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है. यू सी, सो इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वुड रिट्रेस द सेम पाथ. देखो, हमने कोई नया रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनाया, उसी में हमने इसको रिट्रेस कर दिया. दिस इज द फर्स्ट रूल. रे एक्चुअली पासिंग थ्रू नहीं होगा, वो था हमारा कॉन्केव के लिए जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली पास कर रहा था. इस बार हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बिहाइंड द मिरर है ना, इसलिए यहां पे होगा अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर लग रहा हो कि मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जाना था इसको, वैसा रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगा. दिस नीड्स टू बी शोन विद डॉटेड लाइन बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे. द रे हैज नॉट कम ओवर हियर बिकॉज द सर्फेस इज ओपेक. हाउ कैन द रे कम ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर? सो दिस इज जस्ट इमेजिनरी लाइन, सो वी हैव ड्रॉन इट विद ब्रोकन लाइन्स. ऑलराइट, अगर प्रोड्यूस किया तो वो सी पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स है, तो वो सेम पाथ को ही रिफ्लेक्ट बैक करके जाएगा. दिस इज द फर्स्ट रूल. बना लो. तो देखो, रूल्स हमने जो लिख लिया वो रूल्स दोनों मिरर के लिए सेम है. ठीक है, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का हल्का. सेकेंड रूल कहता है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर आइदर पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. तो जब हमने कॉन्केव मिरर किया था तो हमने एक्चुअली बोला था इट पासेस थ्रू द फोकस. तो हमने जो फिगर बनाया था आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे फोकस से ही पास किया था. इस बार क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स के लिए हो जाएगा अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. तो अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर वुड बी अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. तो यहां पर हमने एक रे बनाया जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो. ये सेकेंड रूल को मैं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट रूल का फिगर को मिटा नहीं रहा हूं. लेट इट बी, व्हाट्स द बिग डील. तुम इसको ध्यान दो, एक पैरेलल रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है. देखो, ये दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, उसके साथ ये इंसिडेंट रे जो मैंने अभी बनाया ए बी, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ इस एंगल से मूव करेगा जिसको हम बैक ट्रेस करेंगे. आई थिंक दिस इज ओके. इसको अगर हम बैक ट्रेस करेंगे तो वो लगेगा कि फोकस से निकला हुआ है, ऐसा मुझे प्रतीत होगा. इट वुड बी अपियरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. तो देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे मैंने बनाया है उसको जब मैंने बैक ट्रेस किया तो लग रहा है कि फोकस से जा रहा है. अगर कोई रे ऐसे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकिन नीचे की तरफ भी है तो भी उसका सेम ही होगा. दिस रे इज कमिंग एंड हिटिंग ऑन दिस convex mirror and it is parallel to principal axis. So after reflection, would this be the path? Should this be the path of the reflected ray? No, because if you backtrace it, it is not meeting at focus. So ये हमने गलत बनाया है. तो कैसा बनाना है? ऐसा रिफ्लेक्टेड रे का पाथ होगा, वो तुमको स्केल को सबसे पहले ऐसे रखना. यू नीड टू प्लेस योर स्केल इन दिस वे. स्केल को फोकस से पास करते हुए ऐसे रखना और फिर तुम ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बनाना और इसको डॉटेड लाइन से कर देना. तो कुछ इस तरह का पाथ होगा रिफ्लेक्टेड रे का और ये होगा तुम्हारा ब्रोकन लाइन से तुम्हें शो करना है कि यू हैव बैकट्रेस दिस लाइन, इट हैज मेट एट फोकस इटसेल्फ. गॉट इट? तो मैंने इसी फिगर में दोनों रूल्स को बता दिया. पहला रूल बताया कि कोई रे अगर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस किया, और दूसरा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो कुछ ऐसे वो रिफ्लेक्ट किया एज इफ इट वाज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. ठीक है, आई एम इरेजिंग
नाउ बोथ ऑफ द फिगर्स, क्योंकि थर्ड रूल को भी मैं इसी में बनाऊंगा तो इट वुड बिकम वेरी अनटाइडी, वैसे ही यहाँ थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है, तो थर्ड को मैं इसी में अब नहीं बताऊंगा, मैं इसको इरेज करके तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, लेट इट बी क्लीन. एंड सो नाउ आई हैव क्लीन द स्क्रीन एंड यू विल ड्रॉ इट एज अ सेपरेट फिगर. इनफैक्ट ये जो दो फिगर्स हमने बनाया है तुम सेम में मत करना, डिफरेंट वाला बनाना. फर्स्ट रूल के लिए फर्स्ट फिगर, सेकंड रूल के लिए सेकंड फिगर. अब थर्ड रूल पे आते हैं. तुमने इस तरह का फिर से बना लेना है convex mirror. Third rule says a ray passing through the focus or converging at focus. तो एक्चुअल जब हम कॉन्केव मिरर के लिए हमने लिखा था पासिंग थ्रू द फोकस, लेकिन कन्वेक्स में क्या हो जाएगा, इट्स नॉट एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस, इट वुड बी कन्वर्जिंग एट फोकस. सो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ रे कन्वर्जिंग एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो अब कोई रे आ रहा है जो कि मानो लग रहा हो कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसको अगर हम सामने की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो लगेगा कि मानो फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो. तो इस तरह का एक्चुअली वो तो फोकस पे मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इट हैज नॉट गॉन ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर. मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. लेकिन जिस तरह से वो आ रहा था वैसा लग रहा था कि मानो वो फोकस की तरफ अगर मीट करता, अगर आगे बढ़ जाता तो रिफ्लेक्टेड पाथ इसका क्या होगा, इट वुड बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का रिफ्लेक्टेड पाथ होगा. दिस इज वेरी सिमिलर टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट को उल्टा, सेकंड पॉइंट कह रहा था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा मानो लगेगा कि फोकस से जा रहा हो, फोकस से निकला हुआ हो. और ये क्या है कि कोई रे अगर आ रहा है कि मानो फोकस पर मीट करना उसको, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट उसका कन्वर्स है ना. एंड द फोर्थ रूल यही कहता है कि कोई, वही सेम है फोर्थ रूल, कि पोल पे अगर कोई रे आके मिल रहा है पोल पर, तो यहां तुम्हें प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट करेगा. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये रूल हम यूज करने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहां पे हमें प्रोट्रैक्टर की जरूरत है और इसमें एरर होने के चांसेस है, क्योंकि ये एंगल्स में बहुत ही सावधानी से बनानी होती है. तो वी विल नॉट बी गोइंग फॉर दिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग एंड नोइंग द रूल वी हैव ड्रॉन इट. तुम्हें ये 4 डायग्राम्स बना लेना है. तो ये जो हमने टोटल 4 रूल्स पढ़ा, इनफैक्ट 4 रूल्स फॉर कॉन्वेक्स एंड 4 रूल्स फॉर कॉन्केव, मिलता जुलता ही है. तो टोटल ऑफ 8 diagrams we have done today, 8 ray diagrams we have done, and you should have drawn all of those 8 ray diagrams in your notebook after watching this video. I hope you have done it. अब कैसे इन चारों में से किसी भी 2 ray diagrams को, any 2 of them को हम यूज करके ray diagrams for the formation of images in a concave mirror and then for a convex mirror हम करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक्चुअली कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स फॉर डिफरेंट केसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो राइट द हेडिंग, वी वुड नॉट बी डूइंग इट टुडे, वी वुड बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. बट देन बिफोर लीविंग दिस वीडियो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू गिव you people. So just wait. So information of images in a concave mirror. Now this topic would be dealt in the next video. Now what is the important information that I want you to give before leaving this video is that you are presently in class 9th and after a few months from now you would be moving to class 10th. Right now if you want to join my regular batch for class 10th, which is a live real time ऑनलाइन बैच, जिसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं पढ़ाता हूँ, रियल टाइम पर लाइव आकर क्लासेस लेता हूँ. रेगुलर डेडिकेटेड रूटीन में हमारे क्लासेस चलते हैं एंड दैट इज देयर फॉर क्लास 10th. आई हैव बीन डूइंग इट सिंस लास्ट 3 years एंड वी आर डूइंग इट इन अ very successful manner. It is going on at a very successful manner and उसमें बहुत अच्छे results भी आ रहे हैं बच्चों का, 98%, 99%. So if you want to join that regular live online batch of mine in your upcoming grade 10th, then I have provided a link in the description box of this video कि उसमें कैसे join करना है, क्या process है course का, पूरे all the features of the course, fee structure, everything explained. You need to enroll for it as early as possible. The registration has started. Registration fee is just ₹100 per subject.
There are 3 subjects that I would be teaching: physics, chemistry, and computer applications. You may opt for any 1, 2, or all of the 3 subjects as per your choice. So registration kar lo, 100 rupees per subject. It is nothing. This amount is very nominal. And once you have registered, your seat is booked for the academic section. Once the seats are booked for all, and no seats are left, then you cannot book your seat further. Admission would not be possible. So admission process has started. ये मत सोचना कि अभी बहुत टाइम है 10th के लिए, and I would be doing it later. उस समय तक हो सकता है seats full हो जाए and you won't be getting the chance to study. तो अभी से book कर लो and you would be relaxed. You would be confirm that your seat is booked right now. तो वो सारे details इस course का तुम्हारा दिया हुआ है description box में. कोई भी डाउट्स होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ईमेल दैट आल्सो हैव प्रोवाइडेड इन द वीडियो इटसेल्फ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलो ठीक है, आज इतना सारा हमने बात कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम्स का फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ कॉनकेव मिरर करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.